السلام علیکم. جماعت دہم. مضمون ہے اردو. تاریخ ہے 16 جون 2020. دن ہے منگل. سبق نمبر 3 پڑھیں گے ہم لوگ. پاکستان کی شہزادی. اس کے مصنف ہیں اشرف صبوحی. اشرف صبوحی 1905 میں پیدا ہوئے. 1990 میں ان کی وفات ہوئی. ان کے تعارف میں ہم لوگ ان کی تعلیم، ملازمت، اسلوب نگارش یعنی کہ ان کا لکھنے کا انداز کیسا تھا اور کن موضوعات پر انہوں نے لکھا، بچوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھی اور تصانیف ان کی کون کون سی ہیں. تو چلیں بک کھولیں اور آپ لوگ بک پہ دیکھیں. میں پڑھتی ہوں. اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا. یعنی کہ قلمی نام کا مطلب ہوتا ہے اپنی اصلی نام کی جگہ کوئی دوسرا نام استعمال کرنا، اسے قلمی نام کہتے ہیں. آپ دہلی میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، یعنی کہ آپ کی جو ابتدائی یعنی کہ بچپن کی جو تعلیم آپ نے حاصل کی وہ آپ کے گھر سے ہوئی. 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا. معروف یعنی کہ مشہور ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے. اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے. بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے. قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے. 1965 میں ملازمت سے فارغ ہو گئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی. مطبوعات کا مطلب ہے پرنٹ، میڈیسن کے اوپر جو پرنٹ کیا جاتا ہے، جو میڈیسنس کے نام وغیرہ، ان میں انہوں نے جاب اختیار کی پرنٹنگ میں. اشرف صوابی کا اب آپ لوگ اسلوب نگارش یعنی کہ ان کے جو موضوعات تھے اور جو ان کی جن مضمون موضوعات پر انہوں نے لکھا ان کے بارے میں. اشرف صوابی ایک صاحب طرز ادیب تھے. اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کے بول چال یعنی کہ انہوں نے زیادہ تر جو اردو زبان میں خصوص دہلی کے جو مختلف طبقے تھے، امیر غریب، جو بھی جس بھی کیٹیگری کے لوگ وہاں رہتے تھے، ان سب کے جو ہے وہاں کے بول چال، وہاں کے روزمرہ اور جو بولے جاتے تھے، محاورے جو بولے جاتے تھے، ان پر انہوں نے ان کو پوری گرفت تھی اور ان پہ ہی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. انہوں نے بچوں کے لیے کہانیاں اور درجن بھر کتابیں بھی لکھی جو بہت مقبول ہوئیں. اب ان کی جو تصانیف ہیں وہ کون سی ہیں؟ دہلی کے چند عجیب ہستیاں، غبار کاروان، جھروکے، سلمہ اور بن باسی دیوی شامل ہیں. اور انہوں نے بہت ساری انگریزی کتابوں کے اردو میں ترجمے لکھے. یہ تو تھا ان کا تعارف، جس میں ہم نے ان کی تعلیم، ان کی ملازمت، ٹھیک ہے، ان کے موضوعات جن پہ انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے بچوں کے لیے کہانی لکھی، ان کی تصانیف ہیں. اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں. سبق ہے پاکستان کی شہزادی جو اسلم صبوحی نے لکھا ہے. اسلم صبوحی نے جو یہ سبق لکھا ہے، یہ ایک ایسی داستان ہے، یہ سبق بیسیکلی ایک داستان ہے، ایک ایسی داستان ہے جس میں مافوق الفطر مخلوق موجود ہو، یعنی کہ جن، پری اور بادشاہ وغیرہ کے واقعات. یعنی کہ انہوں نے ایک ایسا سبق لکھا ہے جس میں ہمیں جن، پری اور بادشاہ کے متعلق آگاہی ہو رہی ہے. اب ہم اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں. خلاصہ: سیدانی بی مرہٹہ گردی، یعنی کہ مرہٹہ گردی کا مطلب ہے دہشت گردی میں بیوہ ہو گئی، یعنی کہ ان کے میاں جو ہے وہ دہشت گردی میں کہیں فوت ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ بیوہ ہو گئی. ایک شریف گھرانے کی بیٹی تھی، دوسری شادی کو برائی خیال کرتی تھی، یعنی کہ انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، اس چیز کو وہ برا سمجھتی تھی. اور انہوں نے مغلیانی کا مطلب درزن کا پیشہ اختیار کیا اور اپنی بیوگی کا زمانہ اپنی ہنرمندی اور سلیقہ شاعری کی بنا پر گزار دیا. یعنی کہ انہوں نے درزن جو ہے نا، انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، انہوں نے درزن کا جو ہے پیشہ اختیار کر لیا اور اپنا جو بیوہ پن ہے، جو ان کی بیوگی کا زمانہ تھا، جو انہوں نے اپنی ہنرمندی یعنی کہ وہ درزن تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آرام سکون سے جو ہے اپنے اس ہنر کو کام میں لاتے ہوئے جو ہے انہوں نے اپنا گزارا کرتی رہی. اور دوسرے نوابوں اور عمرہ کے ہاں ان کی سلیقہ مندی کی بڑی شہرت ہوگی. یعنی کہ نواب، جو اس زمانے کے نواب اور امیر لوگ جو تھے، ان کے سلیقہ مندی یعنی کہ اس ہنر مندی کا جو تھا، بڑے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کپڑے سیتی ہیں، تو یہ شہرت جو ہے وہ دن بہ دن بڑھنا شروع ہوگی. عمرہ اور عمائدین، جو وہاں کے جو عمرہ امیر لوگ تھے، عمائدین معززین تھے، اپنی بیٹیوں کے جہیز ٹانکنے کے لیے ان کو بلا لیتے تھے. جوانی کے زمانے میں بہت کمایا، لیکن محنت سے کمایا ہوا روپیہ سنبھال نہ سکی. یعنی کہ جتنا وہ کماتی تھی اپنی جوانی میں، انہوں نے بہت سارا پیسہ کمایا مگر وہ اپنے سیو نہیں کر سکی. بڑھاپے میں دوسروں کے در در کی ٹھوکریں
खाना पड़ी, इनको ठोकरें पड़ी, यानी कि दूसरे के, अब उनके पास कोई रुपया पैसा नहीं था, जवानी तो उनकी गुजर गई जैसे तैसे, मगर बुढ़ापे में इनको क्या हुआ, दूसरों के धर धर की ठोकरें खाना पड़ी। लेकिन मीर साहब ने इनकी बेगम ने इन्हें अपने घर में बना दी, यानी कि मीर साहब एक और कैरेक्टर है, ठीक है, सी के अंदर, ठीक है। उन्होंने जो है वो मीर साहब थे, उन्होंने और उनकी बेगम ने इन्हें अपने घर में बना दी और अपने बच्चों की तरबियत के लिए लागी और इनके बच्चों की तरबियत के लागी, यानी कि उन्होंने मीर साहब और बेगम उन्होंने इनको अपने घर में रख लिया और कहा कि ये इनके बच्चों को घर में रह के जो है वो पढ़ाया करेगी और ये हमारे घर में जो है, अब इसका कोई है तो नहीं, तो ये हमारे घर में रह के बच्चों को पढ़ाएगी, तो चलो इसके लिए एक पनाहगाह भी रहेगी और हमारा जो है हमारे बच्चे भी तालीम हासिल कर लेंगे। सैयदानी के बारे में मशहूर था कि वो पाकिस्तान से हो आई हैं, यानी कि अब लोगों ने ये भी सुन रखा था कि सैयदानी जो है वो क्या है, वो पाकिस्तान यानी कि जहाँ परियाँ, जिन और बादशाह वगैरह रहते हैं वहाँ से होकर आई हैं। जब उनसे दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने पाकिस्तान से हो आई हैं, तो उन्होंने दरियाफ्त किया, तो उन्होंने जब उनसे दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने पाकिस्तान की सैर का अहवाल सुनाना शुरू किया। सैयदानी भी पाकिस्तान में बादशाह की बेटी का जहेज टांकने गई थी और वहाँ पाकिस्तान में अजीब व गरीब मनाजिर देखे, यानी कि जब वो पाकिस्तान जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि परियां ही परियां हैं, खूबसूरत, ऐसे उसने कहा कि जैसे वो जन्नत में आ गई है, इतना खूबसूरत पाकिस्तान होता है। यानी कि वहाँ पे कहा जाता है कि एक फल जो है जो आप मुंह में रखें खाते थे तो जो ज़हन में आप जिस भी फल का जायका चाहते थे वैसा ही वो फल का जायका आता था, और जिस जगह से कोई फल तोड़ते थे मतलब वहाँ पे ऑटोमेटिकली दूसरा फल जो है वो लग जाता था। तो ये बहुत खूबसूरत से मंजर को देखकर वहाँ पे उन्होंने देखे, वो घबरा गई और उन्होंने कहा कि नहीं मैं वापस जाना चाहती हूँ। तो इसके बाद वहाँ पे वो जहेज़ का जो था वो बादशाह की बेटी का जहेज़ बनाकर वापस जो है अपने घर वापस आ गई। ये था खुलासा। अब इसके बाद हम मशकी सवालात करेंगे। मशकी सवालात में सवाल नंबर 1 है, सैयदानी बी ने गुज़र औकात के लिए कौन सा पेशा अख्तियार किया, यानी कि उसने अपना जो है पेट पालने के लिए, ठीक है, अपना वक्त गुजारने के लिए कौन सा पेशा अख्तियार किया। सैयदानी बी ने गुज़र औकात के लिए मुगलियानी का पेशा अख्तियार किया। सवाल नंबर 2, मीर साहब और इनकी बीवी सैयदानी बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थे। जवाब, मीर साहब और इनकी बीवी दोनों इस बात पर खुश थे कि सैयदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया। ऐसी परहेज़गार उस्तानी सिर्फ रोटियों पर मुयस्सर आती है। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था। जवाब, पाकिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को अपनी बेटी का जहेज़ टांकने के लिए बुलवाया था। सवाल नंबर 4, बादशाह बेगम का असल नाम क्या था। जवाब, बादशाह बेगम का असल नाम ज़ुमुर्द परी था। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी। जवाब, पाकिस्तान के फलों की ख़ास बात ये थी, इनको खाते हुए जिस फल का ख्याल दिल में लाया जाए वैसा ही ज़ायका इस फल में आ जाता था, और जिस जगह से फल तोड़ा जाता तो फ़ौरन उसकी जगह दूसरा फल निकल आता। ये तो थे आपके मशकी सवालात। इसके बाद आपके पास अल्फाज जुमले हैं जो आपने खुद करने हैं। आप 10th क्लास के बच्चे हैं, आप इजीली वो कर सकेंगे। आप अपने सबक की रीडिंग करेंगे, इंशाल्लाह आप सॉल्व कर सकेंगे। तो अल्फाज जुमले आपने खुद करने हैं। ज़ूम यानी अल्फाज की तारीफ देखें, आपकी बुक पे लिखी हुई है, फिर भी आप अपनी बुक को खोलें और देखें। ज़ूम यानी अल्फाज की तारीफ। ज़ू फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है दो। ऐसे अल्फाज का इमला तो एक ही होता है, यानी कि लिखा हुआ लफ्ज़ एक ही होता है, ठीक है, लिखा हुआ लफ्ज़ आपके पास एक ही होता है, मगर जो है उसके मायने दो होते हैं। ज़ूम यानी लफ्ज़ यानी कि जिसके दो मायने हो, इमला में एक तरह से लिखा जाए और उसके मायने दो हों, लेकिन इसके दो मायने हैं और इनमें से बाज़
औकात लफ्ज एक मायने में मुज़क्कर जबकि दूसरे मायने में मुअन्नस होता है। अब कहने वाला कहते हैं कि ज़ू मायने जो है वो दो, उसके मायने के दो लफ्ज होते हैं। यानी कि एक लफ्ज हो और उसके दो मायने हो, एक लफ्ज लिखा हो उसके दो मायने वो रखता हो, यानी कि एक मायने उसका बाज़ औक़ात जो है वो मुज़क्कर भी हो सकता है और बाज़ औक़ात वो मुअन्नस भी हो सकता है। उसमें से एक लफ्ज मुज़क्कर और एक मुअन्नस होता है। फिर सुनिए, ज़ू मानी अल्फाज जो है इसकी इमला एक और मायने दो, यानी कि लफ्ज एक होता है और इसके दो मायने होते हैं, इसे ज़ू मानी अल्फाज कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, बारिशों से आईने की आग जाती रही। अब आग जो है इसके दो मायने हैं, पानी और चमक। पानी मुज़क्कर है और दूसरा जो है चमक वो क्या है, मुअन्नस है। यानी कि आपको जैसे बताया गया कि एक लफ्ज होता है, इमला का एक लफ्ज है, इसके दो मायने हैं। एक लफ्ज, एक जो मायने होता है वो मुज़क्कर होता है, दूसरा क्या होता है, मुअन्नस होता है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल आप देखें, सवात में कौन सी कान है। कान जहाँ से मादनियात निकाली जाती है उसको भी कान कहते हैं, और हमारे जिस्म का एक उज़ू जो है वो भी क्या कहते हैं, कान है। जिस्म के एक हिस्से को हम कान कहते हैं, जिससे हम सुनते हैं। ठीक है। अगला है, बादशाह बेगम के हुक्म पर शहजादी के कपड़ों के थान पे थान। ठीक है, थान पे थान मतलब जगह को भी कहते हैं थान, पंजाबी का वर्ड है, आप लोग बोलते भी हैं थान, और कपड़े का जो गट्ठा होता है उसको भी थान कहते हैं। हक बात कहने की बर्दाश्त में वो दर पर झूल गया, यानी कि दर का मतलब ये है कि फांसी को भी कहते हैं और मकाम को भी। नंबर 5 है, जहां चाह वहां राह, यानी कि चाह के दो मायने हैं, एक है चाहत और दूसरा है कुआं। ठीक है, ये था आपके ज़ू मानी अल्फाज की तारीफ और उनके एग्जाम्पल्स जो आपको मैंने बताए हैं। अब हम लोग तशबीह करेंगे। तशबीह का लफ्ज़ मुशब्बह से निकला है, जिसके मायने हैं एक जैसे होना। इल्म बयान की इस्लाह में किसी चीज़ को खास वस्फ की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना तशबीह करार कहलाता है। यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इक्वल करार देना, यानी कि जिनमें क्वालिटी एक जैसी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, पानी बर्फ की तरह ठंडा है। अब पानी को बर्फ के साथ जो है वो क्या दी जा रही है, तशबीह दी जा रही है। मगर पानी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, मगर बर्फ उससे ज़्यादा ठंडी होती है। जिससे तशबीह दी जाती है वो क्वालिटी में ज़्यादा होना चाहिए, वो तारीफ में या बस अपनी खूबी में ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, पानी इतना ठंडा नहीं होता, जबकि बर्फ जो होती है वो ज़्यादा ठंडी होती है। पानी बर्फ की तरह ठंडा है, ये क्या है, मुशब्बा। ठीक है, बर्फ मुशब्बा बे, पानी को बर्फ से तशबीह दी जा रही है, तो ये क्या है, जिसे तशबीह दी जा रही है वो क्या है, मुशब्बा बे की तरह। और ये जो है हर को इन खूबीज को, क्वालिटीज को आपस में मिलाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो हरूफ तशबीह है। ठंडा क्या है, इसमें ठंडापन जो है ये क्या ज़ाहिर कर रहा है, इसको ठंडेपन को ज़ाहिर कर रहा है। ये क्या है, ठंडापन जाहिर करता है वजह शबह को। ठीक है, मकसद, किस मकसद के लिए हम लोग ने किए। ठीक है, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए तो दोनों में किसी मुख्तलिफ वस्फ का पाया जाना ज़रूरी है। दूसरा ये कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसमें ये खूबी या वस्फ ज़्यादा हो। तो कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ से आप लोग तशबीह दे रहे हैं, जैसे पानी को आप बर्फ़ से तशबीह दे रहे हैं, तो बर्फ़ में जो है वो क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पानी से बर्फ बहुत ज़्यादा शदीद ठंडी होती है। ठीक है, तशबीह के 5 अरकान हैं। मुशब्बा, जिस चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार दिया जाए। मुशब्बा बे,
जिस चीज से तशबीह दी जाए, यानी कि दूसरी चीज में ज्यादा क्वालिटीज हो, जिसमें मैंने आपको जैसे बताया पानी को हम लोग बर्फ से दे रहे थे, तशबीह दे रहे थे, तो ये मुशब्बा बे था, बर्फ मुशब्बा बे है जिसमें पानी से कहीं ज्यादा क्वालिटीज ज्यादा मौजूद है कि वो ज्यादा उससे ज्यादा ठंडी होती है। वजह शबा वो मुश्तरका सिर्फ जिसकी वजह से एक दूसरी चीज को दूसरी चीज जैसा कहा जाता है। गर्ज तशबीह यानी कि किस गर्ज की बिना पे एक दूसरे को तशबीह के मुकाबिल ठहराया जाता है, जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए। नंबर 5 हरूफ तशबीह यानी कि इन लफ्ज़ों को आपस में मिलाने के लिए इन तशबीह को जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं हरूफ तशबीह कहलाते हैं। वो अल्फाज या हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तशबीह देने के लिए जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे तरा, मानद, जैसी, जैसे, सा वगैरह, ये हैं हरूफ तशबीह। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक और एग्जाम्पल है, टीपू सुल्तान शेर की मानद दिलेर है। अब टीपू को तशबीह दी जा रही है किस चीज से? शेर से। शेर जो है वो इंसान से कहीं गुना ज्यादा इसके अंदर क्वालिटी और वो बहादुर होता है, ठीक है। तो अब इसकी वजह जो है वो वजह क्या है कि ये बहादुरी की वजह से जो है शेर को टीपू से जो है वो तशबीह दी जा रही है, टीपू को जो है शेर से तशबीह दी जा रही है, ठीक है। मगर शेर जो है वो इस बंदे से एक गुना ज्यादा अहमियत का हामिल है, इसमें ज्यादा जो है वो क्वालिटी पाई जाती है, ज्यादा वस्फ, ज्यादा खूबी पाई जाती है बहादुरी की। मानद जो है वो गर्ज़ तशबीह है, ठीक है। मकसद है सिर्फ इसका बहादुरी का इजहार करने के लिए। सॉरी, जो हरफ तशबीह दिया जा रहा है वो मानद है, और जो दलेर है, जो बहादुर है, वो क्या दिया जा रहा है? वो गर्ज है, वो वजह जो है वो गर्ज़ तशबीह है, जिसकी वजह से इस दोनों को टीपू को शेर पर कहा जा रहा है कि जो टीपू है वो शेर से की तरह की मानद दलेर है, यानी कि टीपू है मुशब्बा, शेर है मुशब्बा बे, और मानद जो है ये लफ्ज़ जो है हरफ तशबीह है, और ये गर्ज है हमारी क्या है? दलेर जो है वो हमारी क्या है? वो मकसद है जिसकी वजह से हम लोग टीपू को शेर से तशबीह दे रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा जो है तशबीह। इंशाल्लाह कल अगले सबक के साथ आपसे मुलाकात होगी। हाँ, इसके साथ आप ये भी देखें कि अल्फाज मुख्तलिफ भी हैं आपके पास, लतीफ़, कसीफ, शब, देन, खुश, तार, जुफ, तार, शीरी, तल, नशेब, फराज, तरकियात और इसका मुख्तलिफ है जहर। ये है आपके पास आपका जो सबक नंबर 3 मुकम्मल तौर पे मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह कल सबक नंबर 4 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।